हेलो फ्रेंड्स, मैं रचना अमरनाथ हैप्पी लिटरेचर चैनल में आपका स्वागत करती हूँ. फ्रेंड्स, in this video I'm going to discuss one important topic from American drama MEG 17, expressionism. And if you want me to make more videos on MEG 17, give me the feedback through liking the video, subscribing, and also through your comment. This will actually help me to understand the actual demand for this course. So we will see this topic in the question form. The question can come in your short notes like what is expressionism. So basically what point you need to write here, you need to write about the meaning of expressionism, then where did it begin, what are its main ideas, what are the feature of expressionist drama, and finally its influence on literature. So friends, expressionism is an artistic and literary movement that started in Germany around 1905. So what is literary movement? Literary movement means collective shift. ठीक है, एक कलेक्टिव शिफ्ट होता है जहाँ पर एक पर्टिकुलर पीरियड में सारे जो राइटर्स होते हैं वो ऑलमोस्ट सेम टाइप के थीम्स को यूज़ करते हैं, स्टोरी को यूज़ करते हैं, स्टाइल या फिर गोल को. तो एक्सप्रेशनिज्म भी एक टाइप का थीम था उस वक्त. ठीक है, तो ये भी एक लिटरेरी मूवमेंट था जब सारे राइटर्स जो हैं वो एक्सप्रेशनिज्म पर अपने वर्क को लिखते थे. सो एक्सप्रेशनिज्म डज नॉट शो द आउटसाइड वर्ल्ड एज इट लुक्स. इंस्टेड इट शोज द फीलिंग्स, इमोशंस एंड थॉट्स इनसाइड अ पर्सन्स माइंड. एक इंसान के दिमाग के अंदर, मन के अंदर क्या चल रहा है उसे डिफरेंट स्टाइल में प्रेजेंट करना, उसे बोलते हैं एक्सप्रेशनिज्म. उसे किसी लैंग्वेज के थ्रू, सिंबल के थ्रू, इमेज के थ्रू एक्सप्रेस करना, उसे एक्सप्रेशनिज्म कहते हैं. ओके, फॉर एग्जाम्पल, इफ़ अ पर्सन इज़ अफ्रेड, एंड एक्सप्रेशनिस्ट राइटर जो होते हैं उसे कैसे दिखाएंगे? डार्क और ट्विस्टेड वर्ल्ड को दिखाएंगे, उसके फियर को एक्सप्रेस करने के लिए. ऐसे डायरेक्टली नहीं बोलेंगे कि हाँ वो इंसान को बहुत डर लग रहा है, नहीं, उसको अलग तरीके से प्रेजेंट करेंगे उसके डर को, लैंग्वेज के थ्रू, स्टाइल के थ्रू, कोई भी सिंबल, इमेज या थीम के थ्रू. ओके, सो रिमेंबर वन लाइन, एक्सप्रेशनिज्म शोज इनर रियलिटी, नॉट outer reality. So this term expressionism became popular around 1910. भले ही मतलब इसको यूज़ बहुत पहले से इसका चालू हो गया था, 1905 के अराउंड, लेकिन जो पॉपुलर हुआ ये जो टर्म है वो 1910 में हुआ. इट डेवलप्ड इन Germany and soon spread to other countries. And the main purpose was to express inner emotions instead of copying the real world. So friends, expressionism is opposite of impressionism. Impressionism means what we see, क्या हम देखते हैं, है ना? और expressionism means what we feel. Now let us discuss its main ideas. See, expressionists believed that feelings are more important than reality. ठीक है, जो हम फील करते हैं और जो हम देखते हैं, तो जो हम फील करते हैं वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. दैट इज़ वाई दे डिड नॉट paint or write in a realistic way. Instead, they used distorted shapes, strange colors, symbols, exaggerated scenes to express emotions. मतलब एकदम ही straight forward realistic चीज़ें ना लिख कर ऐसी चीज़ें, मतलब जो उनके इमोशंस को एक्सप्रेस कर पाए एकदम परफेक्टली, ऐसी चीज़ों को यूज़ करते हैं एक्सप्रेशनिस्ट. एंड वन इम्पॉर्टेंट थिंग इज दिस मूवमेंट वॉज ऑल्सो अ रिएक्शन अगेंस्ट industrialization, machines and modern city life, because people were feeling lonely and emotionally disturbed. Now let's see how expressionism appeared in literature. Expressionist writers were not interested in showing ordinary life. जो एक्सप्रेशनिस्ट थे वो ऑर्डिनरी लाइफ, ये सब नॉर्मल लाइफ दिखाने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थे. उनको ह्यूमन के साइकोलॉजिकल कंडीशन को दिखाना था. एंड दैट इज़ वाई कैरेक्टर्स वर यूजुअली सिम्बॉलिक, नॉट रियलिस्टिक. Many characters were not even given personal names. Instead, they were called father, mother, cashier, daughter, billionaire, and so on. So the focus was always on the mind and emotions, not on place or time. So expressionist drama focuses on the inner world of the character. Now let's discuss the techniques. Expressionist plays use strange and dream-like setting. The stage may look distorted, मतलब कुछ एकदम अलग सा, strange दिखने जैसा, अनयूजुअल. वैसे ही कैरेक्टर्स का जो
कॉस्ट्यूम होता है वो भी एकदम अनयूजुअल रहेगा. डायलॉग इज ऑफन शॉर्ट, इमोशनल एंड पावरफुल. राइटर्स ऑल्सो यूज मोनोलॉग्स, मास्क, soliloquies, then symbolism to show what is happening inside the character's mind. Basically, instead of showing normal conversation, characters express their deepest fears, guilt, and emotion. Now see, expressionism had a great influence on modern literature. Many American playwrights were inspired by it. And among them, most important name is Eugene O'Neill. His plays like The Emperor Jones and Harry F are फेमस एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सप्रेशनिस्ट ड्रामा. तो फ्रेंड्स, एक्सप्रेशनिज्म जो है वो मॉडर्न थिएटर, फिल्म्स को भी इंस्पायर किया है, पेंटिंग्स को भी इंस्पायर किया है. आज के भी राइटर्स जो है एक्सप्रेशनिस्ट टेक्निक्स को यूज़ करते हैं टू एक्सप्लोर ह्यूमन साइकोलॉजी. तो यहाँ पर एक पॉइंट याद रखना है कि यूजिन ओनिल जो है वो इम्पॉर्टेंट अमेरिकन एक्सप्रेशनिस्ट प्ले राइट है. दैट्स ऑल इन दिस आंसर. नाउ लेट्स कंक्लूड. सो फ्रेंड्स, एक्सप्रेशनिज्म बिगेन इन जर्मनी अराउंड 1905. It focuses on the inner emotions rather than outer reality. It uses distortion, then symbolism, dreamlike scenes to express human feelings. In drama, it gives more importance to mind and psychology than to realistic characters and settings. Finally, it greatly influenced modern literature, especially the plays of Eugene O'Neill, The Emperor Jones and The Harry F. देखिए, एक्सप्रेशनिज्म में आपको क्या क्या पॉइंट को याद रखना है. ये शुरुआत हुई थी इसकी जर्मनी में 1905 में. इनर इमोशंस पे फोकस करते हैं, आउटर रियलिटी पर नहीं. अपोजिट्स ऑफ इम्प्रेशनिज्म, देन डिस्टॉर्शन एंड सिम्बॉलिज्म का यूज़ होता है. ड्रीम लाइक सेटिंग. इंपॉर्टेंट प्ले राइट्स इज यूजिन ओनिल, हिज प्ले द एम्परर जोन्स एंड द हैरी एफ. ठीक है, तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, आपके लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज़ इसे लाइक करना ना भूलें. चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, कमेंट करिए. तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ. तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए. बाय.